Question number 5. Here integration is minus 5 to 5 mod x plus 2 dx. So modulation is there. So first you have to break this modulation. You have to understand the modulation, the meaning of this modulation. So the meaning of this modulation is it will give always plus sign. So when this x plus 2 and it will give plus sign when this quantity inside this modulus will be negative. Otherwise it will no change. Suppose if we are writing mod 5, so mod 5 is 5 because 5 inside this modulation is greater than 0. But if we write minus 3, then it will give plus 3 because the quantity inside this modulation is less than 0, and that's why this modulation function add minus in front of this given quantity. So minus 3 is plus 3. Done. So whenever the quantity is less than 0, modulation function will add minus sign in front of this quantity, and if the quantity is inside this modulation is greater than 0, it will do no change in the quantity. Done. So here this x plus 2 is there, so we can say that when x plus 2 is greater than or equal to 0, positive sign है ना, negative नहीं है. So for this modulation will do nothing, it will do nothing on this quantity. But when this x plus 2 is less than 0, so x plus 2 greater than 0 means x is greater than equal to minus 2. So when x is greater than equal to minus 2, no change will be there, and when x is less than minus 2, it will put minus sign in front of this quantity. Here our limit is minus 5 to 5. So here we'll break our limits from minus 5 to minus 2, because from minus 5 to minus 2, when x is less than minus 2, our quantity will be changed as minus of this x plus 2, है ना. तो यहाँ पर मॉड्यूलेशन फंक्शन हमारा ब्रेक होगा -5 से -2 तक, क्योंकि x जब -2 से छोटा होगा ना, तो यहाँ पर आपको माइनस साइन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये मॉड्यूलेशन फंक्शन ऑपरेट करेगा. तो वो होगा -x plus 2 dx. और जब ये x हमारा -2 से बड़ा होगा, -2 से बड़ा मतलब कौन से कहाँ तक, क्योंकि हमारी लिमिट ही -5 से 5 तक है. सो -2 कहाँ तक, -2 to 5, यहाँ तक x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हमारा मॉड्यूलेशन फंक्शन ऑपरेट नहीं करेगा ना, वो डायरेक्ट क्वांटिटी दे जाए. तो होगा x plus 2 dx. So this is how you can break this modulation function. ये समझ में आया? Now है ना, ये मॉड्यूलेशन फंक्शन ब्रेक किया है, कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हमने लिमिट से वो चेंज की. तो दिस इज द प्रॉपर्टी, ये स्टडी किया था, a to b f of x dx, दिस इज इक्वल टू a to c f of x dx प्लस c to b f of x dx. डन. ब्रेकिंग द लिमिट्स. ये प्रॉपर्टी यूज की यहाँ पर, -5 to 5 को डिवाइड किया, -5 to -2 और -2 to 5, क्योंकि यहाँ पर मॉड्यूलेशन फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है x इक्वल टू -2 पर. डन. व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, फंक्शन विल बी पॉजिटिव, सो वो फंक्शन ऐसे आएगा. एंड फॉर x लेस देन -2 फंक्शन नेगेटिव है, तो वहाँ पर नेगेटिव साइन ऐड करके, है ना, नेगेटिव को ऐड करके उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे. सो नाउ परफॉर्म इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन I इज, what is the integration of this minus x plus 2, माइनस साइन को बाहर ले लेंगे. सो माइनस कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ x plus 2 is x square by 2 plus 2x, and applying limit -5 to -2 plus integration of this x plus 2, it's again x square by 2 plus 2x, limits -2 to 5. Now put the values of this limit. Minus sign is there, so minus sign here. First put x equal to -2, so it will be -2 square. -2 square is 4. 4 by 2, 2 into -2 -4, so it's a 2 minus 4. 2 minus 4 minus, then put x equal to -5. -5 square 25 by 2.
25/2 प्लस 2 इंटू -5 -10 डन। माइनस, और ये प्लस है तो प्लस, इसकी वैल्यू x इक्वल टू 5, 25/2 प्लस 10, इट्स 25/2 प्लस 10 माइनस, पुट x इक्वल टू -2, -2 स्क्वायर 4, 4/2 2, तो इट्स 2, यहाँ पर x इक्वल टू 2 -2, so it's a -4 done। now simplify this is minus sign, यहाँ पर 2 minus 4, 2 minus 4 is -2, -2 माइनस, यहाँ पर क्या होगा 25 माइनस, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 20, so 25 minus 20 5/2, so it's a -5/2 प्लस, यहाँ पर क्या होगा 2 10 20 प्लस 25 45, 45/2, और यहाँ पर 2 minus 4 -2 माइनस माइनस प्लस, तो इट्स अ +2 है ना। ये ब्रैकेट अंदर माइनस साइन अंदर आएगी तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो, 2 2 ज़ा -4 -5 -4 -5 -9/2, और ये माइनस आगे आएगा तो +9/2, सो दिस इज इक्वल टू 9/2, और ये 2 2 ज़ा 4, 45 प्लस 4 49/2, 49/2, 9 plus 49 58/2, 58/2 is 29, 29 is the answer डन। तो इसको आपको याद रखना है कि कैसे मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन उसको ब्रेक करते हैं। इस सब मॉड्यूलेशन वाले टोटल 3 सम है। सो सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, देखो अगेन क्या करना है। हियर इंटीग्रेशन ऑफ मोड x minus 5 dx 2 to 8 इज देयर, है ना। मॉड्यूलेशन फंक्शन एक बार फिर से देखो, सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स हमारा मॉड्यूलेशन फंक्शन है, और यहाँ पर हम एफ ऑफ -2 करेंगे तो मोड में -2 आएगा, और यहाँ पर हमारे x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू -2, और ये x लेस देन 0 है, तो मॉड्यूलेशन फंक्शन इसको पॉजिटिव बनाता है। लेकिन पॉजिटिव कैसे होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट 2 नहीं आता है, मॉड्यूलेशन फंक्शन क्या करता है, माइनस साइन ऐड करता है, तो ये -2 + 2 होता है। और मॉड्यूलेशन फंक्शन माइनस साइन कब ऐड करता है, जब हमारा x लेस देन 0 होता है तब, है ना। सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स ऐसा फंक्शन है, और यहाँ पर हम एफ ऑफ 3 डायरेक्ट लेते हैं तो ये मोड 3, तो यहाँ पर तो 3 पॉजिटिव है, तो ये मोड का कोई यूज नहीं है, वो डायरेक्ट आंसर देगा 3, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, है ना। तो मॉड्यूलेशन फंक्शन कोई ऑपरेशन नहीं करता है, डायरेक्ट जो वैल्यू वही देता है। बट जब हमारा x लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है, तो मॉड्यूलेशन फंक्शन जो x होता है उसके सामने एक नेगेटिव साइन ऐड कर देता है, तो माइनस माइनस प्लस होके हमारा +2 आता है ना। ये मॉड्यूलेशन फंक्शन का अल्गोरिदम है, तो वो अल्गोरिदम हमें यहाँ पर यूज करना है। तो देखो x -5, तो मॉड्यूलेशन फंक्शन ऑपरेट कब नहीं करेगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पर हमारा x क्या है, x -5, so here we can say that when x -5 is greater than equal to 0, तब ये जो क्वांटिटी वो डायरेक्ट ऐसी आएगी, और x -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दैट मीन्स जब x की वैल्यू 5 या फिर 5 से ज़्यादा होगी तब वो मॉड्यूलेशन फंक्शन ऑपरेट नहीं करेगा। तो मॉड्यूलेशन फंक्शन ऑपरेट कब करेगा, जब x की वैल्यू 5 से कम होगी। और यहाँ पर हमारी लिमिट क्या है, 2 to 8 है, तो 2 to 5 ब्रेक करेंगे और 5 to 8 ब्रेक करेंगे। तो x की वैल्यू जब 5 से कम होगी दैट मीन्स ये लिमिट पर हमारा मॉड्यूलेशन फंक्शन ऑपरेट करेगा, और क्या करेगा, माइनस साइन है वो अप्लाई करेगा, और 5 to 8 तक x पर जो है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो मॉड्यूलेशन फंक्शन ऑपरेट नहीं करेगा, तो वो साइन सेम रहेगी। डन। तो दिस इज हाउ यू कैन ब्रेक दी लिमिट्स। सो हाउ, फॉर इंटीग्रेशन i इज 2 to 5, तो 2 to 5 के लिए लेस देन है, तो यहाँ पर आपको माइनस साइन अप्लाई करनी है। तो 2 to 8 माइनस x -5 dx 2 to 5, और यहाँ पर
5 to 8 x plus 5 dx। अभी समझ में आया? कुशल, हर्षिता, so your integration is x square by 2 minus 5x, this will be 2 to 5, plus this one is x square by 2 plus 5x, this is 5 to 8। now apply the limits, माइनस साइन, यहाँ पर क्या होगा, 5 पुट करेंगे तो 25/2 माइनस 5 5 25, ये 5, then put x equal to 2 minus 2 square 4/2, so it's 2 minus 10, ये फर्स्ट लिमिट हो गई। उसके बाद पुट x इक्वल टू 8, तो क्या होगा, 8 स्क्वायर 64/2 32 प्लस ये माइनस था तो प्लस क्यों किया, माइनस 32 माइनस 8 5 40, तो ये 40 डन, माइनस x इक्वल टू 5 25/2 माइनस 5 5 25, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ये 25 2 50 minus 50 and 25 minus 50 minus 25/2, this one is minus 8 plus, so it's a plus 8, minus minus plus here 32 minus 40 minus 8, again this one is 225 50 minus 25, so it's a plus 25, so plus 25/2, 2 8 16, 16 minus 25 plus 16 minus 9/2 and minus sign, so minus minus plus, so again 9/2 plus here 2 8 16 minus 16 plus 25, so again 9/2, so 2 into 2 9/2, answer is 9, done। So this is how you can solve your question number 6। 7th, here integration I is 0 to 1 x into 1 minus x raised to n dx is there, again applying our property 0 to a f of x dx equal to 0 to a f of a minus x dx, done। so our integration I is 0 to 1 है ना, 1 में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे, so this will be 1 minus x here 1 minus x, so 1 minus x क्या होगा, 1 minus x उसका होल पावर n dx, so this is equal to 0 to 1 है ना, x था तो 1 minus x किया, क्योंकि x है तो a minus x होता है ना, इसलिए it's 1 minus x। now here open this bracket, 1 minus 1 0 plus x, it's x raised to n dx। हाँ, यहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो फॉर्म आया ना, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इसको अंदर एक्सपांशन करो, 0 to 1 1 minus x into x raised to n, so it will be x raised to n minus x into x raised to n, this is x raised to 1 पावर, तो पावर का एडिशन होगा x raised to n plus 1 dx। इंटीग्रेशन को सेपरेट करो, so 0 to 1 x raised to n dx minus 0 to 1
एक्स एस टू एन प्लस वन डी एक्स, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर इंक्रीज होगी और उससे डिवाइड होगा। दिस विल बी एक्स एस टू एन प्लस वन और एन प्लस वन से डिवाइड, और लिमिट तो अप्लाई करनी है 0 to 1 माइनस, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला एक्स एस टू एन प्लस एन, उसमें प्लस वन पावर ऐड करेंगे तो इट्स एक्स एस टू एन प्लस टू डिवाइड बाय n plus 2 and apply limit 0 to 1. So here now put the values. First we will put x equal to 1. So it's a 1 raised to n plus 1 upon n plus 1, और 0 पुट करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 1 raised to n plus 1, so 1 upon n plus 1. So this one is 1 upon n plus 1 minus here 1 raised to n plus 2, so 1 upon n plus 2 minus 0, it's a 1 upon n plus 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो दिस इज इक्वल टू n plus 2 minus n minus 1 upon n plus 1 into n plus 2, plus n minus n cut, 2 minus 1 is 1, so our answer is 1 upon n plus 1 n plus 2. Clear? हेलो, कोई है उस साइड? अच्छा, वेरी गुड, देख रहे हो, आंसर दे रहे हो। मुझे लगा मैं पढ़ रहा हूँ और दूसरे में देख रहे हैं सिर्फ, है ना। आप सबकी तो अभी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप लोगों तो कुछ बोल ही नहीं सकते हम लोग। 1 प्लस 10x dx, आप है ना आपस में बातें करते रहो तो मुझे लगेगा कोई है ना। आपको जिसके साथ जो भी बात करना वो बीच में करो आप, है ना। जैसा क्लास में बात करते हो ना वैसे आप बात करते रहो। सो लॉग 1 प्लस 10x dx, देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये 1 प्लस 10x है ना, इसको 10 पाई बाई 4 प्लस 10x का फॉर्मूला करके कुछ इधर उधर करें तो देखो क्या होगा। तो दिस इज 0 टू पाई बाई 4, है ना। सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये जो x है उसमें से उसको पाई बाई 4 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। 0 टू f, मेरे प्रॉपर्टी लिखना भूल गया। तो सेम अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, तो क्या होगा, x में से x को सब्ट्रैक्ट करना है पाई बाई 4 में से, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह पर x है, तो यहाँ पर होगा 10 पाई बाई 4 माइनस x। तो दिस इज लॉग 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस x dx। क्लियर? अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी। नाउ हियर फॉर्मूला आ गया। So this one is 0 to pi by 4 log 1 प्लस ये 10 का फॉर्मूला है ना। क्या होगा, 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस 10x, 10 पाई बाई 4 1 होता है, तो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, so it's a 1 plus 10x डन इंटू dx। ऐसे किया। नाउ सिंप्लीफाई दिस, दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, ये सब लॉग में ही है, जो भी प्रोसीजर सिंप्लीफाई हो रहा है वो सब लॉग में हो रहा है। ये 1 प्लस ये पूरा ब्रैकेट है, तो ये ऊपर एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी ये 1 प्लस 10x इंटू 1, तो इट्स 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x एंड होल डिवाइड बाई 1 प्लस 10x dx, प्लस 10x माइनस 10x कट, so this is equal to 0 to pi by 4 log प्लस 10x माइनस 10x कट, तो ये हो गया 2 अपॉन 1 प्लस 10x, ये सब log का ही है सिंप्लीफिकेशन dx। तो देखो ये log है, log 2 अपॉन 1 प्लस 10x, सो log x प्लस, ऐसा होता है ना log x बाई वाई, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे log x माइनस log y, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, है ना। जैसे सब्ट्रैक्शन हो तो डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन है तो इसको सब्ट्रैक्शन में लिखते हैं,
तो अभी इसको सेपरेट कर दे, कैसे होगा, 0 to π/4, 0 to π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x। इसमें किसी को कोई डाउट? अभी इसको इंटीग्रेशन इसको सेपरेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, 0 to π/4 log 2 माइनस अगेन 0 to π/4 log 1 प्लस, देखो इसमें किसी को कुछ दिख रहा है क्या आया? नहीं दिखा? देखो ये क्या है, ये जो आई दिया था ना वही आई यहाँ पर आया, और ये तो हम आई का इंटीग्रेशन सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। दिस इज आई इक्वल टू ये आई, और ये आई को हम इस साइड ले ले तो 2i हो जाएगा। सो दिस इज 2i इक्वल टू, और इतना ही बचेगा सिर्फ, 0 to π/4 log 2 कांस्टेंट, तो log 2 को बाहर ले ले ऐसे, log 2 कांस्टेंट है ना, ये dx था, तो ये 1 dx, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, और अप्लाइंग लिमिट π/4, तो क्या होगा, 2i इक्वल टू log 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x एंड लिमिट π/4, 0 to π/4, तो इसकी वैल्यू आएगी π/4, है ना। सो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 2i इक्वल टू π/4 इंटू log 2 π/4 इंटू log 2, और ये 2 डिवीजन में आएगा, तो i कितना होगा, π/2, है ना, सॉरी π/8 log 2, π/8 log 2 is the answer. Done. Ninth. Question number 9. Here integration I equal to 0 to 2 x square root of 2 minus x dx. Again वही property है ना, 0 to a f of x dx, so it's a 0 to a f of a minus x, a में से subtract करेंगे, so this one is 0 to 2, 2 में से x subtract करेंगे, so it's a 2 minus x square root of 2 minus x को subtract करना है 2 में से, है ना, जहाँ पर भी x होगा वो x को हम 2 में से subtract करेंगे, तो कर दिया यहाँ पर भी दोनों जगह पर, दोनों टर्म में। सो दिस इज इक्वल टू 0 to 2, दिस वन इज 2 minus x स्क्वायर रूट 2 minus 2 0 माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये x dx, लास्ट समय किया था वही करना है, रूट x को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, दिस वन इज 0 to 2 minus x into root x, so this will be 2 root x minus x into root x, x raised to 3/2 होगा dx। अब इंटीग्रेशन को सेपरेट करो, ए रूट एक्स होगा 1/2, है ना, सो सेपरेटिंग इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट लिमिट्स 0 to 2 x raised to 1/2 dx माइनस 0 to 2 x raised to 3/2 dx, जो इंटीग्रेशन इज 2 इंटू x raised to 1/2 का होगा x raised to 3/2, x raised to 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट्स 0 to 2 माइनस x raised to 3/2 का इंटीग्रेशन होगा x raised to 5/2 अपॉन 5/2 एंड लिमिट्स 0 to 2। ये कांस्टेंट 3/2 पर आएगा तो 4/3 होगा, सो 4/3, और यहाँ पर x इक्वल टू 2 अप्लाई करेंगे तो होगा 2 raised to 3/2 माइनस 0, सो 2 raised to 3/2 माइनस ये बाहर आएगा तो 2/5 और पुट x इक्वल टू 2,
तो होगा 2^5/2 माइनस x इक्वल टू 0, तो वो टर्म्स ऑफ 0। डन। अभी ये इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे करना है। सो हियर दिस 3/2 पावर है ना, 3/2 पावर है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/2, तो 3/2 होगा। और 5/2 है, उसको हम लिखेंगे 2 + 1/2, 1/2 पावर मीन्स स्क्वायर रूट है ना, तो ये होगा 2 × 2√2। देखो 4/3, 4/3, और 2^3/2 को लिखेंगे 2√2। चेक करो इसको, 2^1/2, 2^1, 1 + 1/2, 3/2 पावर आ जाएगा ये, माइनस 2/5, और 2^5/2 को लिखेंगे 2^2 सो 2² 4 × 2^1/2, तो इट्स 4√2। ये समझ में आया है ना। 2^5/2 को 4√2 लिखा और 2^3/2 को 2√2 लिखा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हो गया, 4 × 2 = 8√2 डिवाइड बाई 3 माइनस 4 × 2 = 8√2 डिवाइड बाई 5। सो अगेन 8√2 कॉमन, बाकी बचेगा 1/3/1/5, इट्स 8√2। इसका एलसीएम ले लो 15, 3 5 जा 5 3 जा, तो इट्स 8√2 मल्टीप्लाई बाई 2/15, 2 8 जा 16, 16√2 अपॉन 15 is the answer. Done. Now question number 10. Sum number 10. Here I is given 0 to π/2, 0 to π/2, 2 log sin x minus log sin 2x dx. This is given. So first we are replacing this sin 2x with 2 sin x cos x. So this one is 0 to π/2, 2 log sin x minus sin 2x, sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x होता है। So this one is log, इसका पूरा होगा 2 sin x cos x dx। और आप सब देखो ये सब मल्टीप्लीकेशन में है ना, log we can say this one is log x, log y, log z, log x into y into z, so it's log x plus log y plus log z होगा, ये तीनों का एडिशन होगा log में। so this is equal to 0 to π/2, 2 log sin x माइनस है ना, दिस इज log ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड, सो log x प्लस log y प्लस log z, तो तीनों का एडिशन log में होगा, इट्स log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x dx। डन। ब्रैकेट ओपन करो, साइन चेंज करो, इट्स 0 to π/2, 2 log sin x माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x dx। यहाँ पर देखो 2 log sin x माइनस log sin x, तो 1 2 में से 1 जाएगा तो log sin x बचेगा, सॉरी 4 में से 3 टर्म बचेगी, और तीनों टर्म को मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ, सेपरेट इंटीग्रेशन, तो इट्स 0 to π/2, 2 log sin x minus log sin x, it's a 1 log sin x dx। डन। माइनस 0 to π/2,
log 2 dx, ये log 2 आ गया, और माइनस माइनस 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 log cos x dx। डन। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, है ना। कौन सी, जो हम रेगुलर यूज कर रहे हैं वही, 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स, पाई बाई 2 में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या होगा। क्योंकि है ना, मुझे पता है कि साइन एक्स का कॉस एक्स में रिप्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पर कॉस एक्स है ही, तो ये साइन को मैं कॉस में रिप्लेस करता हूँ। कैसे, तो 0 to पाई बाई 2 लॉग, ये साइन को लिखूंगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, बाकी सब एज इट इज, माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 dx माइनस 0 to पाई बाई 2 log cos x dx। हेलो, sin pi by 2 minus x is cos x, it's a 0 to pi by 2 log sin pi by 2 minus x, it's a log cos x dx minus 0 to pi by 2 log 2 dx minus 0 to pi by 2 log cos x dx। तो देखो ये log cos x dx, log cos x dx प्लस माइनस ये कट हो गया, तो क्या बचा, माइनस लॉग, ये कांस्टेंट आ जाएगा, माइनस लॉग 2 को बाहर ले लो, माइनस लॉग 2 को बाहर ले लो, और 1 बचेगा, और 1 टाइम इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और लिमिट होगी 0 to pi by 2, apply limit pi by 2 minus 0, so it's a pi by 2, so this one is minus log 2 into pi by 2 is the answer। डन, माइनस log 2 pi by 2 is the answer। और ये माइनस को आप इसके पावर में ले जाओ तो 1/2 होगा, तो आपका फाइनल आंसर जो टेक्स्ट बुक में दिया होगा pi by 2 log 2 raised to minus 1, ये माइनस 1 ऊपर जाएगा ना, 2 raised to minus 1 is 1/2 is the answer, है ना। ये माइनस 1 है ना, ये 2 के पावर में चला जाएगा, तो 2 raised to minus 1 और 2 raised to minus 1 is 1/2, सो आपका आंसर होगा pi by 2 ना, pi by 2 into log 1/2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, here integration I is minus pi by 2 pi by 2 sin square x dx। तो हमने देखा है कि यहाँ पर हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स है ना। देखो ये इवन फंक्शन है, एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर माइनस एक्स होगा, और साइन साइन एक्स होल स्क्वायर, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स ही होगा। therefore we can say that our f of x is even function, f of x is even function। तो इवन फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी क्या थी, माइनस ए टू ए है, उसको हम ट्वाइस ऑफ 0 to a कर सकते हैं लिमिट, सो इंटीग्रेशन i is twice of minus pi by 2 is converted into 0 to pi by 2 sin square x dx। डन, से दिस वन इज रिजल्ट नंबर 1। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। उसके बाद सेम प्रॉपर्टी जो अभी तक यूज कर रहे हो वो, i इक्वल टू 2 इंटू 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वेयर, और ये x को सब्ट्रैक्ट करेंगे पाई बाई 2 में से, है ना। तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 2 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वेयर पाई बाई 2 माइनस एक्स विल बी cos square x dx, से दिस वन इज द रिजल्ट 2। अभी दोनों को ऐड करो, सो एडिंग 1 and 2, so we are getting 2i equal to 2 common 0 to pi by 2, it's a sin square x plus cos square x dx। So sin square x plus cos square x dx is 1, so this is nothing but the twice of 0 to pi by 2 1 dx,
So we are getting 2I equal to 2 into x limits 0 to pi by 2, and this is equal to 2 into pi by 2, 2 cut, and therefore our answer is I equal to pi by 2. Done.